Hello everyone, welcome back to online video classes class 7. Okay dear students, in previous video we started and we just introduced the second number lesson from an alien hand or supplementary error. Okay, and which was that lesson? The name of that lesson is bringing up curry. Okay, we started and we just introduced this lesson. So in today's video we are going to start the explanation of this lesson line by line or passage by passage. So here bringing up curry. Okay, here who is the curry? We know that curry is a small elephant or baby elephant. Here curry, a 5-month-old baby elephant. Here we can see that the curry is very small or 5-month-old baby elephant. एक 5 महीने का छोटा सा elephant का बच्चा था. And he lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. And with his 9-year-old friend, और वो एक 9 ईयर के बच्चे के साथ बड़ा और वही उसकी क्या करता था, देखभाल करता था. नेक्स्ट, करी डजंट ईट मच. करी ज्यादा खाना नहीं खाता था. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. लेकिन सिर्फ कितना खाना खाता था? सिर्फ 16 केजी, 16 किलोग्राम खाना खाता था. डिलीशियस ट्विग्स, ट्विग्स मींस जो ब्रांचेस होती पेड़ की, जो पतली ब्रांचेस कह सकते हैं और जो नई नई ब्रांचेस होती है वो उसे खाने के लिए अच्छी लगती है. अ डे. द नेक्स्ट, प्लेफुल एंड सेंसिटिव. एंड ही आल्सो प्लेफुल एंड सेंसिटिव. और वो जो हाथी था, करी था, वो प्लेफुल था, सेंसिटिव था. सेंसिटिव मतलब दूसरे के लिए उसको दया आती थी, उसको दूसरे के लिए प्रति प्रेम था. करी सेव्ड अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. एंड वन डे ही सेव्ड अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. बच्चे को बचाया था डूबते बच्चे को. जब वो एक बच्चा डूब रहा था तो उसने उसको बचाया था, उसकी मदद की. ओके, नाउ द लेसन स्टार्ट. Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. Okay, one boy, 9-year boy, is telling a story to us. Actually, he's a writer, and he's telling story when he was 9 year old. And what happened? The Curry was 5 months old baby. Then he get that Curry to take care of. टू टेक केयर ऑफ. उस नरेटर को लगभग 5 मंथ का जो हाथी था करी, तब उसे उसकी देखभाल करने के लिए दिया गया. आई वॉज 9 year old एंड दैट टाइम नरेटर वॉज, उस टाइम नरेटर की एज कितनी थी? 9 years old. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टो. और उस टाइम मैं उसके पीठ पर चढ़ सकता था. हाउ? टिप टो के ऊपर, मतलब जो हमारे अंगूठी के ऊपर, जैसे हम ऊंचे करते, देखो आगे की जो उंगली है, उंगली के ऊपर खड़े रहते, तो उस तरह से खड़े होकर वो अपने हाइट को बढ़ाकर वो उसके पीठ पर, करी के पीठ पर, he can settle on his back. Then he seemed to remain that high for nearly 2 years. उस लगभग वो 2 साल तक उसी हाइट में रहा. We grew together and both narrator and Curry grew together. दोनों एक साथ बढ़े. That is probably why I never found out just how tall he was. And after a few years, he doesn't found how they became tall or how he became tall. और वो कैसे बड़ा हुआ उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो दोनों भी एक साथ बड़े थे. Then he lived in a pavilion. That Curry was living in pavilion, or we can also call that shade. Pavilion को हम shade भी कह सकते. Then under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. Okay, here under a thatched roof. Under a thatched roof means with the grass, with the help of grass they make a roof. मतलब घास होता है, घास का रूफ उन्होंने बनाया था. एंड रेस्ट एंड थिक ट्री स्टम्प, और बड़े बड़े जो तने होते ट्री के, उसके ऊपर उसको एडजस्ट किया गया था, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन. और उसके साथ साथ वो गिरे नहीं. क्यों? क्योंकि अगर वो हाथी अंदर जाए उस पवेलियन के अंदर, व्हेन दैट करी एंटर इन दैट पवेलियन, दैट कुड नॉट मूव, दैट कुड नॉट फॉल डाउन. और उस वजह से वो गिरे नहीं, उस वजह से वो स्टम्प के ऊपर, तने के ऊपर, पेड़ के तने के ऊपर उसको बिठाया गया था, एडजस्ट किया गया था उस रूफ को. One of the first thing Curry did
did was to save the life of boy. One day, what he did, first thing was Curry saved one boy's life. एक बार उसने क्या किया, एक लड़के की जान बचाई थी. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play. Okay, here now the curry is grow. थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पर करी. तो यहाँ पर करी क्या करता था, only eat just 40 pounds of twigs. 40 pound of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. Okay, he just eat 40 pounds of twigs a day and just chew that food whatever he get and play with. सिर्फ वो क्या करता था, लगभग 40 पाउंड के आसपास वो खाना खाता था और वो खेलता था उसके साथ साथ. And then every day that narrator took him to the river to why to take him bath. क्यों? उसको जो नहाने के लिए नदी पर उसे वो हर रोज लेकर जाता था. Then he would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. At least 1 hour he can use to take care of 1 hour. मतलब लगभग वो 1 घंटे तक उसको क्या करता था, नहलाता था. जब वो पानी में पड़ा हुआ होता था, गिरा हुआ होता था, तब वो नरेटर क्या करता था, वो जो क्लीन सैंड वो रिवर में मिलती थी उस सैंड का यूज कर उसकी जो पीठ है उसको रब करता था, रगड़ता था लगभग 1 घंटे तक. Then after that he would lie in the water for a long time. और लगभग बहुत टाइम तक 1 घंटे के बाद भी वो वहां पर सोया ही रहता था, पानी में बैठा ही रहता था. On coming out his skin would be shining like ebony and he would squeal. He would squeal with pleasure as I rub water down his back. Okay, and when that curry what coming out of the river, he looked like or shining like a ebony. मतलब वो क्या होता था, जब पानी से बाहर निकलता था तो वो चमकता था एबनी की तरह. एबनी मींस इट्स लाइक अ वुड. ये वुड है, वुड की तरह है और वो ब्लैक कलर का होता है, वो चमकता है. और वो पानी से बाहर आता था तो हाथी वो जो करी वो भी क्या करता था, चमकता था. Then he would squeal with pleasure as I rub water down his back. And when he threw the water on his back, on Curry's back, then he started squeal. मतलब वो क्या करता था, चिल्लाता था. पानी मतलब चिल्लाना मतलब वो मजे से चिल्लाता था जब वो नरेटर उसके बॉडी पर और बैक पर पानी फेंकता था. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious sticks for his dinner. Okay, then that narrator take him by the ear. उसका कान पकड़कर वो क्या करता था, उसे लेकर जाता था. And narrator said that this is the easiest way to lead the elephant, and where they went and leave him on the edge of the jungle. और जंगल के एज में, जंगल के अंदर उसे छोड़ देता था चरने के लिए. And he went to the forest to get some luscious twigs for. और वो जो नरेटर था वो जंगल के अंदर जाता था किसके लिए, उसके डिनर के लिए, मतलब करी के डिनर के लिए कुछ अच्छी सी ब्रांचेस लाए, टहनियां लाए. Then one has to have a very sharp hatch to cut down these twigs. Hatch means is like axe. Axe जो होती, कुल्हाड़ी जो होती, उस तरह का कुछ वेपन वेपन की जरूरत होती है और उसे धार की भी जरूरत होती है. और लगभग कितना टाइम लगता था उसे धार लगाने के लिए? It takes a half an hour to sharpen the hatchet because of a twig is mutilated and elephant will not touch it. उसे धार लगाने के लिए आधा घंटा लगता था. उसे धार लगाने की जरूरत क्यों थी, उसे शार्प करने की जरूरत क्यों थी?
क्योंकि दैट एलिफेंट और द एनी एलिफेंट और करी दे नेवर ईट द म्यूचुलेटेड ट्विग्स और म्यूचुलेटेड ब्रांचेस। जो उलझी हुई ब्रांचेस है वो मतलब एक दूसरे में अटकी हुई ब्रांचेस है वो कभी नहीं खाते। करी और एलिफेंट जो है वो इस तरह की ब्रांचेस कभी नहीं खाते, उस वजह से उसे उस एक्स को, उस हैचेट को क्या करना था पड़ता था, शार्प करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. Okay, that was not easy job for that narrator to collect the twigs and saplings, मतलब छोटे पौधे और twigs जो है, branches जो है, जो नई branches होती है उसे कलेक्ट करना इतना easy काम नहीं था। I had to climb all kind of trees to get the most delicious and tender twigs. और तो नरेटर कहते हैं कि मुझे हर तरह के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था ये ब्रांचेस को कलेक्ट करने के लिए, इस ट्विग्स को कलेक्ट करने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री। उसे कौन सी ट्वीज अच्छी लगती थी, कौन सी टहनियां अच्छी लगती थी, तो उसे बनियन ट्री जो हमारा वट वृक्ष उसे कहते हैं, उसे उस ट्रीज की ब्रांचेस, जो नई ब्रांचेस होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। Which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in a March. Okay, और उसके साथ मतलब कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च, मतलब उसके लिए वो चर्च की तरह है, उसके लिए वो खाना एक क्या होली वर्क है, उसे अच्छा लगता है वो खाना। Then one day that narrator was collecting or gathering some twigs, banyan trees twigs for dinner of curry. But what happened? When I suddenly heard Curry calling to me, और उसने करी की आवाज सुनी। मार्च के महीने में वो जब कलेक्ट कर रहा था, ट्विग्स को कलेक्ट कर रहा था, तो उसने एक आवाज सुनी करी की। तो वो क्या कर रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस, एज ही वाज वेरी स्टिल वेरी यंग, द कॉल वाज मोर लाइक दैट ऑफ बेबी दैन एन एलिफेंट। मतलब वो बड़े एलिफेंट की जो आवाज होती उतनी बड़ी आवाज नहीं थी, लेकिन वो छोटा था, बेबी था, इस वजह से उस बेबी की आवाज जैसी होती एलिफेंट की, उस तरह की आवाज वो नरेटर ने सुनी। आई थॉट समबडी वाज हर्टिंग हिम, और उसे ऐसे लगा कि उसे कोई मार रहा है, करी को कोई हर्ट कर रहा है, मार रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माय ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, बट ही वाज नॉट देयर। ओके, एंड when that narrator heard the sound of curry, then that narrator came out down from that tree and ran very fast to the edge of the forest. जहां पर उसे छोड़ा था, नरेटर ने उसे छोड़ा था, करी को छोड़ा था, वहां पर वो जल्दी से भागकर पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी से भागकर उस एरिया में, एज ऑफ द फॉरेस्ट पर, फॉरेस्ट के एरिया में वो चला गया, वहां पर वो चला गया और वहां पर जाकर देखा, बट दैट करी वॉज और ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वहां पर वो नहीं था, वहां पर वो नहीं था, करी वहां पर कहीं पर उसे दिखाई नहीं दिया। देन व्हाट विल हैपन, इसके बाद क्या होगा, करी के साथ क्या हुआ होगा, करी ने क्या किया होगा, उसे किसने मारा होगा, कि करी क्या करना चाहता है, कोई चुरा कर ले गया क्या उसे, क्या क्या चीजें उसके साथ हुई। ओके, these things whatever happen we will discuss in next video. So dear students, today we stop here and the remaining part of this lesson we will discuss in next video. Thank you very much.